Hello, guys. Let's get started with the podcast. We have Vihang and Ankit. Let's start with their introduction. Okay, myself Bihang. I am currently in IIT Bombay. I am with Devansh Bhaiya. I am an IDC, and it's the end of Sem 1 for me. So first year is going on. About my ranks in ID में I was prelims में 48 rank. उसके बाद यूसड में AIR was 47. निफ्ट में BF टेक मैंने दिया था बस. तो उसमें मेरी आई थिंक 5 या 6 रैंक आई थी ऐसा कुछ. आई डोंट इवन क्लियरली रिमेम्बर. अबाउट यू अंकित? Yeah, so I think मैंने तो already काफी ज़्यादा videos बना चुकी हैं about me and my introduction and all. So once again, I'm Ankit, Kate if you will. Hello juniors, and I'm also in IDC. I took a drop year and I didn't had science, so मेरे पे options बहुत ज़्यादा limited थे even in UC. But luckily we are here and we'll be. Oh, Design beeps are really clumsy. Now we know it. yeah. So we'll be answering all of your questions today. Makes sense. आई डिडंट टेल अबाउट माय बैकग्राउंड. सो मेरा साइंस बैकग्राउंड था Yeah. एंड मैंने ड्रॉप ईयर नहीं लिया था, which most of the people find very hard. I've seen students cry कि भैया साइंस है, like ड्रॉप ईयर भी नहीं ले सकते हो. I get you bro. Let's start. अभी तक कॉलेज लाइफ फिर आईडीसी कैसी जा रही है? इतना सो रहे हो, कैसा गया ये फेस्ट, कैसा एक्सपीरियंस था? First few months were really like not okay. First few months were challenge because you are in a new environment with a lot of new people and everybody is adjusting. So I think that's more or less not about IDC or like IIT Bombay, but like college life itself. So that was थोड़ा सा hard to manage. After that you sort of थोड़ा सा friends बन जाते हैं and like इतने moments हो जाते हैं कि तुम इतने hardship से साथ में चल जाते हो तो ये थोड़ा bond बन ही जाता है. तो last के 1-2 महीने तो we were like full on vibing and yeah अभी the sem break is going and हम घर गए थे एंड घर जाने के बाद ऐसे फ्रेंड्स की कॉलेज की इतनी याद आ रही थी कि दैट्स व्हाई एक्चुअली केम टू मूड है कि यार घर 2 हफ्ते बहुत हो गया, अभी थोड़ा कॉलेज वापस आके आते हैं. एंड वी हैड ओएमजी द बेस्ट 1 वीक अभी तक यहाँ पे. सो कॉन्सर्ट्स मतलब पूरा कॉलेज वापस घूमना एंड मीटिंग सो मेनी पीपल. मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि आई नो सो मेनी पीपल. Like every second person we pass and like hi, I'm like dude, how do you even know? People come in and say कि यार अंकित मेरे को जानते हो आप? Ankit be like, yeah, of course, but आपका नाम क्या है? I'm just bad with names. I do know people. I think it's a design thing. We guys are bad with names. Even I'm bad with names. But Makes sense. and about my first year, let me get started there. Starting with, oh dude, I'm not that friendly यार. I'm very intimidating to people. तो भाई starting में मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बने थे. But it was like there were a couple of friends. और उसके बाद like you meet people, start like having कभी कभी ऐसा होता है कि you are just stuck in a room. You have to like manage with those people. तो तब like maybe people realize कि he's not as rude as he seems. Makes sense. है ना. तो तब I started finding people. तो अभी भी I have a small group of friends, but those are really nice. Like I like people who are, I can call mine. I don't want कि भाई तू बाहर जाके ये. Makes sense. Apart from that, it was really fun actually. Assignments के पीछे भागना, the prints लेने के लिए भागना. Do you remember I ran for the DS prints, dude? We would not have made it without Vihang with the prints. Like we were just doing all the virtual or the digital all stuff, but all the physical stuff, like even making the product itself and the prints and all, getting all the stuff done as a physical, Vihang did. So proud of him. अरे भाई, I ran like, that is the story of how Ankit and I bonded over. Like we were stuck in a DS का team, तो Ankit and I. DS, what is DS? DS is design studio essentially. Semester के end में एक design project होता है, like overall एक बड़ा. So it's just one assignment over a span of 2 weeks. So you do it properly. हाँ मतलब 3 थे, but majorly तो grade 1 पे ही हुआ था, I guess. Yeah, so Vihang, DS is basically कि जो भी तुमने सेमेस्टर में पूरा पढ़ा उसको तुम्हें sort of एक प्रोजेक्ट के अंदर शोकेस करना है. We were glad कि this was a team project because whatever came out of it हम बहुत proud of it. Like, We're really proud of it actually. Like I think I'll drop those
पोस्ट कुछ बनाते हैं यार अच्छा, इंस्टा पे ड्रॉप करते हैं है ना. बिहांस एंड अंकित आर गोना डू दैट दिस ईयर. लेट्स कनेक्ट ओवर इट 10 दिन में. अपार्ट फ्रॉम इट अभी तो भाई मूडा, इंटर आईटी, फैशन स्टफ हेक्टिक शेड्यूल, बट वो हो गया है. लाइक द मेस्ड अप स्लीप शेड्यूल इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ. तो बहुत मैनेज कर लेते हैं हम, आई फील. And even they are taking classes in between the Muda and all. And कई सारी चीजें होती है, like I know how hectic it is. They're able to manage their time. Even mentors के साथ students are able to interact and all. And even I love the students. They're really cooperative जो हमारे diamond पे, and they're really serious. ठीक है. Other than that, I want you guys to explain me कि design के उन्हें पता है चला. Were your parents supportive and all? Because a lot of people come from different circumstances. They really have really good stories, right? So, you tell the story about your journey. कि कैसे पता चला डिजाइन के बारे में, कैसे कन्विंस करा पेरेंट्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So mine थोड़ा सा लंबा था journey, because I started with fashion actually. 11th grade, I was like नहीं मुझे fashion करना है, so I started prep for like NEFT, and but like the reason I chose fashion was कि I was interested in it, but moreover the reason that I chose कि हाँ करना यही है लाइफ में was कि whatever my parents were telling मुझे वो नहीं करना था. I was not focused कि हाँ मुझे ये करना है, पता है कि मुझे ये तो नहीं ही करना है. And उस रेबेलियस नेचर के चक्कर में तब मैंने ह्यूमैनिटीज भी इसी रीजन से ली थी कि नहीं हाँ मेरे मार्क्स ग्रेड ठीक आए हैं, बाकी सब बोल रहे हैं कि तू कॉमर्स ले ले या फिर साइंस ले ले, आर्ट्स कौन लेता है, तो कि मैं लेके रहूँगा, बिकॉज जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग फॉर सम रीजन. उसी रीजन से फैशन चूज़ किया. बट फिर 11th 10th 12th में रियलाइज कि देयर इज मोर टू इट, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड यू विल बी डूइंग इट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ और एटलीस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. सो फिर एक जब ड्रॉप पे लिया, देन आई रियलाइज कि और डिज़ाइन में भी देयर आर अदर स्टफ विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग. एंड देन जब मैंने पहली बार यूसीड का पार्टे वाला देखा, बिकॉज दो इज माइंडेड मी ऑफ जो क्लासमेट के पीछे जो क्वेश्चन आते हैं ना, सुडोकू या फिर फन वन वाले, लेकिन सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू दैट. एंड मैंने और एक्सप्लोर किया, एंड आई वाज लाइक ओह दिस इज सो कूल शिट, वी लाइक दिस. तो बट माई पेरेंट्स आर वेरी मच कि हाँ, बिकॉज उनको मैंने ऑलरेडी काफ़ी वो कर दिया था कि दे वर लाइक कि अब तो इससे खराब तो और क्या ही हो सकता है. लाइक कि उनके हाँ बहुत खराब था कि फैशन तो बहुत खराब चीज़ है, कोई स्कोप नहीं है ऑल. तो लाइक ये हो गया तो अब तो कुछ भी कर ले. वेल मेरा बहुत सैड था यार. मैं ऐसा बहुत पीपल प्लीजर काइंड ऑफ पर्सन था फैमिली में. तो मेरा लाइक नाना जी का गोल वाज टू हैव एन IAS इन द फैमिली. He wanted me to do engineering and then UPSC and stuff. I tried 2 महीने, उसके बाद नहीं हुआ यार. To the JEE people जो IIT बॉम्बे में है भाई, hats off to you guys. मतलब it's really difficult भाई, standing in 15,000 people and like hardship उतनी है उनकी भी जितनी अपनी. I feel at this point क्योंकि अपना syllabus defined नहीं, अपन वो part में भी difficulty face करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर 2 महीने मैंने JEE पढ़ा 11th पे, 2-3 महीने. एंड मैं घर पे फिर मम्मी को आके बोला यार मम्मी नहीं हो पाएगा, बिकॉज मॉक्स वगैरह होते थे JEE के. तो आई वॉजंट दैट व्हाट डू यू से अटेंटिव टूवर्ड्स इट, या फिर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था और ज़्यादा मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते थे उस पर. तो मैंने क्विट कर दिया. एंड उसके बाद लाइक डिज़ाइनिंग. घर वाले पैसिव सा सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट वो दिखता है ना घर वालों का कि यार नहीं, रियली दे डोंट वांट मी टू डू दिस. बट आई पुश थ्रू. मेरा फिर IIT हुआ तो भाई मेरे को तो आई वाज एट द पॉइंट जहाँ मेरे को पापा को समझाना पड़ रहा था कि IIT क्या होता है. तो भाई मेरा IIT का रिजल्ट लगा, उसके बाद लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग लोर एंड इट्स अ वेरी रियली नाइस लोर. आई शाउटेड ऑन टॉप ऑफ माई लंग्स एट 12:07 एट नाइट. आई वाज प्लेइंग वैलोरेंट एंड माई फादर भाई भागते भागते आए मेरे रूम में, और मैं भागते भागते बाहर जा रहा हूँ मम्मी के पास कि हो गया करके. एंड ही वाज स्लीपिंग. ही केम अप एंड ऐसा फंबल गिर रहे थे मेरे पापा पे, पकड़ा मेरे पापा को कि भाई गिरो मत. एंड ही लाइक भाई पकले चिल्ला क्यों रहा है. लाइक पापा IIT हो गया. तो बोले क्या चिल्लाने लग जाएगा. मैंने बोला यार वेट. मैं बोला मम्मी को बताया, मम्मी भाई आंखों से आंसू चालू हो गए थे. एंड उसके बाद लाइक इट वॉज अ हार्टफेल्ट मोमेंट. फिर पापा को समझा कि हाँ कुछ तो भी हुआ है अच्छा इसके ज़िंदगी में. तो उसके बाद बैठ के पापा को समझाया. एंड द नेक्स्ट डे
proud parents. Papa तो भाई every friend he met after that day is like मेरा बेटा IIT में है, you know. तो that happened. Yeah, then even उसके I know कि lot of students, you know, मैंने तुम्हारे बैचमेट से बात करी. A lot of come from my humble beginning, right? Parents are very, you know, insecure कह सकते हैं. फिर वो like क्या करेगा, बच्चा परेशान रहते हैं. At this point, I guess कई सारे लोगों के parents परेशान होंगे about their kids, and students want to prove them in any way possible. Maybe, you know, validation college के through हो सकता है, job के through हो सकता है, freelance के through हो सकता है, any way possible. So even I talked to your batchmates and also they were, you know, really, the parents were really happy about it कि IIT में हुआ and all, and it was a really really proud moment for both of them, and they also bonded over that. It's a really amazing moment, and I तो know अंकित की journey videos भी देखे हमने, कैसे क्या थी पूरी and all. Let's talk about your journey कि how was your UC preparation journey, mental blocks कैसे थे, ups and downs क्या थे, ठीक है, because JEE से you shifted from JEE, right? Yeah, like 3 months. That was not a very big significant part, but tell you honestly, UCET के लिए भी मैंने seriously 6 months ही prepare किया था. वैसे तो 1.5 साल prepare किया था, but 6 months was the most crucial part. भाई starting में 1 साल it was like भाई बहुत fun चीज़ है, मस्ती करते हैं, and you know design aspirants like the cool kids and stuff, वो एक आज आता है अपन में, तो classes जाते थे, there were girls around, has to fool around and stuff. But 6 months पहले I realized कि no, now is not the time. Like जो अपन ने rebel करके change करा दिया है, you'll also have to prove it, right? कि भाई I'm worth what I changed and I'm worth what I'll do. तो फिर 6 months पहले I started like नहीं अभी तो फोड़ेंगे, and फिर continuous mock test देना was part of the prep. Like I think the best part of prep I would say was the mocks मेरे लिए, क्योंकि I used to give mocks like एंड में तो लाइक रोज एक मॉक देता था, मैं पता नहीं कैसे, मैं मेरे बेटर को बहुत परेशान करता था, मैं बोलता था सर यार मॉक दे दो एक, सर यार मॉक दे दो एक. लाइक ही वाज एट द पॉइंट कि वो मेरे को बोल देते थे कि भाई भग पगले तू पागल है क्या करके, जाके सो जा बोलते थे. लाइक ही लिटरली सेड दैट टू मी एंड आई लाइक या वैलिड इनफ भाई, वो भी And बनना. now you're making mocks for Divergent. Yeah, Now I you're get him, dude. I get him. I'm like, if I get a kid like that, I'll kill him. I'll shoot him. Bhai, making mocks is not easy, man. It's really tough, actually. Why do you think I do not make mocks? मैं देखता हूँ कि like I starting से I was like even you remember हमारे ऐसे we used to complain a lot about mocks. हाँ. जब मतलब दिक्कत एक दो भी आती थी, we were like कि हम चढ़ जाते थे मैसेज करके सारे स्क्रीनशॉट भेज के, and it was I never used to complain ऐसे because I knew कि तुम एक क्वेश्चन में सोचो कि how would you make, and especially way to make something new in MSQ, my brain just can't comprehend कि तुम कैसे करोगे. MSQ, भाई, I made like I. 1.5 month तो हो ही गया है मॉक पे काम. हाँ. Rudra is working लगातार like 5-6 घंटे in a day for making mocks and all. So you better, you know, give him a good review. भाई मतलब हाँ रुद्रा एक्चुअली उसके पास तो आई थिंक लैपटॉप भी नहीं है उसका फिलहाल, तो भाई वो मेरा लैपटॉप लेके ऐसे जुगाड़ कर करके बना रहा है, तो रियली हैट्स ऑफ टू दैट गाय That's भाई. out, man. एंड भाई इट टेक्स अ रियली लॉट एफर्ट. अभी तो आई थिंक सब वेले हैं इसलिए मॉक्स बनाना मेक सेंस, Yeah. लाइक बट Let's get back to your journey. yeah. To my journey, mocks was a really big part. I used to like give them regularly और उसके बाद review वगैरह. I would recommend that. I still do recommend that to divergent kids. Give mocks. Please give mocks. And I just a little bit to add on to that. Part A and Part B दोनों दिया करो. I think हमें कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जिन्होंने Part B सबमिट नहीं किया उनको Part A के मार्क्स देंगे ही. Because so many of them बस थक गए थे, बाद में करना था, but one like no. This is the biggest mistake. भाई तुम्हारे मार्क्स at the end तुम्हें 300 में से ही मार्क्स मिलेंगे. Give the attempt all the 300 वाले मार्क questions, dude. For those who don't know, Ankit is from, you know, our batch, you know, 3-month batch. So he understands you. तुम किस जर्नी से जा रहे हो, कैसे क्या टीचर्स है, मेंटर्स है, as well as mocks and all. तो उसकी एडवाइस सुन लो. He got into IDC. Yeah. And apart from that, apart from mocks, I'd say I scarred the internet for resources, cause that 6 month was like मेरे लिए make it or break it, cause parents were like private colleges can't afford. मैंने तो भाई PPT, there was a moment in my prep जब मैंने PPT बना के private colleges के बारे में explain किया था मेरे parents को literally. I made my दादाजी नानी मम्मी पापा ऐसे sit down at a place and I was like these are the private colleges, अगर यहाँ पे नहीं हुआ
तो आई एम गोना अप्लाई फॉर दीज, इनकी फीस ऐसी है वगैरह वगैरह. बिकॉज पेरेंट्स यूजुअली डोंट रिसर्च अबाउट इट, राइट? पेरेंट्स एट द एंड मोमेंट कम इन एंड लाइक भाई इतनी फीस अब नहीं. I wanted कि भाई you have a clear idea starting से, and I would recommend that to every aspirant I feel at this point. Cause in बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि parents are saying कि you can't do it. Like doing a bad degree at the end, changing degrees like BSc वगैरह, वो passion change करना doesn't make sense, at least for me. And उसके बाद as a part of the prep, I'd say भाई UCIT का brochure मेरे तो phone में I think 1 लाख बार download हो चुका होगा. Every night I used to like 3 AM I am sleeping, नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई करने के बाद मैं सो रहा हूँ 3 बजे. I used to open up the brochure, I used to read it again and again कि भाई कितनी सीट्स है, कितने बच्चे दे रहे हैं गूगल पे, and I used to like calculate the chances कि हाँ भाई मैं कितना किस किस कॉलेज में कौन कौन सी सीट्स हैं, कितने रिजर्वेशन है, कितना क्या है कि dude. क्या कट ऑफ्स रही है पास ईयर में, एंड लाइक you get from shady websites. कोई तो कॉलेज देखो करके they do not I know. Yeah, they do not like genuinely from a realistic point of view that we have right now. I think they do not. They do not have an idea of what actually UCIT is. lot of website I see ki Shiksha and other websites and all. Oh, I hate Shiksha. I'm so sorry. I hate Shiksha. All of them वो बोलते हैं कि इस दिन रिजल्ट आने हैं. Like NID का UCIT का फिर भी उन्होंने exact date है. NEFT और NID में they added up so much all both the years जब मैंने दिया था. And like अभी आ रहा है, अरे मेरे believe करो अभी रिजल्ट आ रहा है. And they also give you very bad quality mocks because they do not make mocks. They want you to register for the mocks. They'll advertise free mocks वगैरह 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 वगैरह. And you download them, they get your number, details and all, then they'll pitch you for the private colleges. That's all. And private colleges ke pitching, please don't listen, cause what you are aiming for is government colleges, please. And even everywhere out there, right, that coachings, the teachers and all get commissions. Yeah. Do not trust anyone apart from that own college. कैमरा के बीच में Apart from that own college, अगर उस college का वो part नहीं है बंदा बंदी, and he's saying कि he understand, and also get a review from 2-3 people. And for that we are also starting our own college community जिसके अंदर you can join the groups and we'll have mentors as seniors from those colleges that can help you out with their journey, their parts and all. You can tag them all, right? So yeah. Also for like private wala, like the private colleges wala thing. So when you like pitched your thing to your family, what was the result? What was the outcome of it? Government. They're like private nahi. They were like impressive pitch, but our expertise do not lie here, so I'm out. Exactly, dude. They were like, इतना तो पैसा नहीं है तेरे को देने के लिए, नहीं देने वाले हैं, प्लीज. गवर्नमेंट या तो ठीक है, नहीं तो BSc करा देंगे ना. BSc. हाँ, मेरा भाई वही था. मैंने नाटा भी दिया था फिर 11th पे एज अ बैकअप कि मैंने बोला BSc तो नहीं करूँगा यार, एटलीस्ट आर्किटेक्चर करके फिर डिज़ाइन में घुस जाऊँगा वापस. तो भाई एंड आई कम फ्रॉम अ लाइक कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड फैमिली, तो मेरे घर पे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स वगैरह है रियल एस्टेट में. तो भाई it made sense for me then. In your journey, what was the hardest part? जब breakdown हो गया, same question for both. I'd say वो 6 months का starting, cause तब आदत नहीं थी saying no to friends कि नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे साथ बाहर, saying no to people कि no I'm not gonna come to functions, no I'm not gonna attend parties. क्योंकि dude I'm a very much party person. I think Ankit knows this at this point. Last night, bhai. I'm a very much party person and saying no, and उसके बाद starting and उसके बाद not having fun for at least 1 month. But उसके बाद it became like a religious routine कि religiously follow कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ. I used to like study for 10 hours straight. मेरा ऐसा था कि मैं एक सीटिंग में एक अलग जगह पे बैठ जाऊँ ना, तो मेरा हो जाता था पढ़ाई. Like that worked out for me. I figured out पहले ही मंथ पे कि what is working out for me, what is not working out for me. जैसे मैं घर पे बैठ के पढ़ता था तो मेरे पास बहुत distractions रहते थे. कोई आ जाता था, मम्मी बुला देती थी, मम्मी बोलती थी काम कर ले, मैं बोलता था नहीं ये नहीं होगा मेरे से, this is not gonna work for me in the longer run. ठीक है, मम्मी पापा गालियाँ मारेंगे कि काम नहीं करता है करके, चलेगा, बट एंड में रिजल्ट तो दे दूंगा यार. तो आई वेंट टू माई क्लास, मैंने कोचिंग से बात की, मैंने बोला यार मेरे को चाबी दे दो तुम्हारे क्लास की, मैं खोल दूंगा, मैं बंद कर दूंगा. तो आई यूज्ड टू गो 10 बजे क्लास पे
खाली रहता था, वो झाड़ू पोछे वाला आता था, झाड़ू पोछा मार के मेरे को निकाल देता था, झाड़ू पोछा मार के चला जाता था, फिर मैं वापस अंदर जाता था. लाइक 15 minutes hardly used to take out of my time. So 10 सुबह and I used to be back at 7 in the afternoon. तो तब तक I used to continuously study. बीच में लाइक 1 to 5 का एक्चुअल क्लास होता था, तो फ्रेंड्स यूज्ड टू कम एंड बीच में फिर 5 बजे एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक यार भाई पानी पूरी खाने जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं. तो यूज्ड टू बी लाइक यार उतना तो वैलिड है. तो लाइक तो जिस सुबह तुम आते थे तो कोई साथ में होता भी No one. स्टडी अलोन. या अलोन कम्प्लीटली. बहुत बड़ा क्लास था. आई थिंक इतने ये कैफे का ही क्लास था एंड मैं अकेला बैठा रहता था. आई यूज्ड टू स्टडी वहाँ पे कि मॉक सॉल्व कर रहा हूँ. आई एम लाइक सॉल्विंग इंटरनेट आर्काइव पे के बुक्स विच आई टोल्ड यू राइट. वो बुक्स बहुत मैंने ढूंढे थे तो वो सॉल्व कर रहा हूँ. मेरे सर ने बहुत सारे बुक्स दिए थे, जैसे बिग बुक ऑफ ब्रेन गेम्स. डूड 1000 क्वेश्चंस है. आई थिंक इवन 2 months आर लेस टू सॉल्व इट. आई टुक लाइक 2.5 months टू सॉल्व दैट बुक. एंड लाइक डेली मेरा लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेप एक सीड और यूसेट के PYQ सॉल्व करते हैं राइट. तो मैं एक क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करके ही उठता था. लाइक दैट यूज्ड टू टेक मी द होल डे. एंड मेरा ऐसा था कि मैं हर क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहा हूँ, मतलब मैं जाने ही नहीं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन. बस 6 महीने इज अ लॉट ऑफ टाइम दैट यू कैन वेस्ट कि हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओ. नाउ तो इफ यू आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि 1 month बचा है, आई वुड नॉट रिकमेंड. आई वुड रिकमेंड कि भाई अप्रोच जान लो ऑनलाइन. इफ ज़्यादा मतलब 15 से 20 मिनट के से ज़्यादा लग रहा है तुमको. आई थिंक यू एग्री. From a third point of view, I have a question for him too. From a third point of view, your routine sounds really depressing. मतलब सुबह 10 बजे उठना, घर से दूर जा रहा, and like staying here for a long time, and you see your friends going out there and all, मना करना and all. तो how were you able to have that motivation all throughout? And maybe breakdown days होते होंगे जब you feel like कि नहीं होगा मेरे से. What was your thought process उस time पे? Because a lot of students who are watching right now might feel the same. I'll tell you honestly भाई, पेपर जाने के पहले रोया हूँ मैं बाथरूम जाके. पेपर आने के बाद गाड़ी में रोया हूँ मैं पेपर देने के बाद. तो भाई रोया तो बहुत हूँ भाई, क्योंकि पता था कि भाई मैं 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ राइट. पीपल आर वर्किंग फॉर लाइक 2 years. तो उनकी हार्डवर्क को अपन क्रॉस करना, द पर्सन हु इज जस्ट वर्किंग फॉर 6 months, I'll have to like घिसना पड़ेगा. there's no option to it. I realize that. फर्स्ट थिंग मेरे लिए व्हाट वर्कड आउट इज कि भाई मेरा तो एंड मोमेंट पे ऐसा भी था कि लाइक लास्ट 3-4 month में अलार्म में मेरे फ़ोन में अलार्म में एक वॉलपेपर का ये था. तो मेरा 4 बजे मैं उठता था. अलार्म का ऐसा था कि अलार्म पे वॉलपेपर 4 बजे के वॉलपेपर पे NID का फ़ोटो है और 5 बजे के वॉलपेपर पे IIT का फ़ोटो है. कि भाई अलार्म बंद कर रहा हूँ तो गिल्ट से बंद कर रहा हूँ कि भाई IIT होगा नहीं अभी, देख ले. तो फिर उठ ही जाता था. एंड उसके बाद थोड़ा सा घर पे पढ़ के फिर सब उठ जाते थे 6:30-7 तक. तो फिर मम्मी के काम वाम में हाथ बटा दिया. एंड उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह होके वापस क्लास. तो वो फिर रूटीन बन गया था. सी आई थिंक हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनी थिंग इज, आई थिंक इवन यू विल एग्री, यू आर अ स्टार्टअप फाउंडेड. तो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनी थिंग इज जस्ट स्टार्टिंग. व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो तुम एंजॉय करने लग जाते हो वो चीज़. लाइक गिविंग मॉक्स भाई मेरे को एंजाइटी बहुत मजा आती थी. वो डोपामीन पगलू मैं कि भाई मेरे को आ जाता डोपामीन कि भाई मार्क्स आ गए यार. एंड यू सी द इम्प्रूवमेंट राइट विद द प्रोसेस कि इवन लाइक मार्क्स आए मेरे स्टार्टिंग में 70 आते थे. देन इट इवेंचुअली क्रॉस टू 90, फिर 113, 120, एक पॉइंट पे 150 भी आने लग गए थे मेरे. अंकित तो started with 40s में, right? Yeah, OMG. The first divergent mock that broke me. और मेरे को एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन याद है. अंकित कॉल लाइक कि मैं पार्टी में बहुत अच्छा हूँ बट मेरा पार्ट भी थोड़ा सक कर रहा है, बट लाइक आई एम रियली गुड एट इट, लाइक आई एम एबल टू स्कोर 130, 140 समथिंग. आई वाज लाइक कि हाँ, बट बहुत लोगों को लगता है कि वो अच्छे हैं पार्टी में, बट जस्ट गिव द मॉक टुमारो एंड मे बी देन यू डिसाइड कि तुम्हारा क्या करना चाहिए एंड ऑल. And Ankit gave the and I never heard back then. I think it was 51 या something. And उसके बाद मैं पार्ट भी मैंने छुआ भी नहीं उस दिन. मेरे पहले that was the lowest I ever scored 300 में से 51. but उसके बाद steady ऐसे थोड़ा चल रहा है. नहीं I would say कि अंकित रुद्र जो भी IDC में है ना are the hardest person. ठीक है. And देखो maybe out of 10 there were 7 more. ठीक है, मे बी जिनका नहीं हुआ है, बट दीज 3 or 4 people
मतलब उनके और कॉलेजेस में हुआ है, they were rewarded in any sense, but IIT Bombay still is, you know, बहुत competitive हो जाता है, you're competing with so many people. I think we have a testament कि भाई, see, Ankit was a NEFT person. He got IIT Bombay and he was like, नहीं मैं NEFT क्यों जाऊँ फिर? तो IIT Bombay मिलने के बाद तो भाई कोई छोड़ नहीं रहा है. Even if you see the ranking list, भाई dot to dot close हो जाती है यार. No one rejects the seat वगैरह. Even I'd say IIT गुवाहाटी, दिल्ली और रूरकी तक उतना चलता है. फिर बाकी इंदौर वगैरह पे बेबी लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि NID हो गया है, कुरुक्षेत्र वगैरह, दैट्स बेटर. बट IIT बॉम्बे तो आई थिंक NIT अहमदाबाद के लिए भी लोग छोड़ते नहीं है. No. है ना? That's true. I've seen. Rudra qualified NIT Ahmedabad too. Yeah. And Rudra is also from Divergent. He's not here अभी, because तबीयत थोड़ी खराब है. वरना it will be a great conversation with him too. तो वो is a very, मतलब that's a very ये. And as I was speaking, the motivation part of the journey है. Starting में motivation नहीं आता है, because you just see yourself failing, right? क्यों motivation आएगा? क्यों भाई तुम गलती करते जा रहे हो? But I think as a span of 15 days, you are pushing yourself. वो span is the best. Like 15 दिन push कर लो, result तुम्हें automatically दिखना चालू हो जाएगा. And उसके बाद you'll start having fun कि भाई अभी 70 से 90 हो गया, 90 से 103 हो गया, 110 हो गया. And like the hardest part for like, if to just add on to that was कुछ खा ले भाई. yeah, but the hardest part for me was कि seeing कि everyone is already ahead of you and however much you're putting, तुम्हें बहुत उसका कम वो outcome दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी लोग उतना ही ज़्यादा कर रहे हैं, right? And so this कम भी कर रहे होंगे, but you don't see those. you don't see that. You don't compare those. Like अभी तुम ऊपर चले जाते हो, नहीं compare कि यार मैं इस level पे हूँ, but मेरे से भी ऊपर है कोई. हाँ. And so there was this one quote that I like swear by throughout my prep. It was कि hard work always beats talent करके, and I always went with the कि Goosebumps. and I always went with, because I knew कि I'm not the smartest अभी यहाँ पे, I'm not the most talented, मेरे सब इतने skills नहीं है और मेरे पास time भी कम है. So what I skills वाला thing is just कि अभी तो तब तो बड़ा लगता था, just skills are scam. इतना नहीं कि कोई पैदा नहीं होता उनको लेके, it just कोई नहीं होता. कि hours you put in है तुम्हें मिल जाएगा. And I feel talent is very rare. Very rare. It can be very, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 लाके थोड़ी मिल रहा है. मतलब सिर्फ IIT बॉम्बे एक बंदे को थोड़ी मिलेगा. आई गेस एक या दो बच्चे तुम्हारे बैच में टैलेंटेड होंगे, and 90% of them and 95% are hard working. hard work. So hard work always beats talent, guys. Like I swear by it, and so many of my classmates do so. So yeah. Like actually, I and Nidhi were talking yesterday. Nidhi general category में I think, I don't remember her rank. 12 or 13 थी. Really nice rank और उसका भी like 200 के ऊपर score था something. But we were talking yesterday कि वो भी depressed थी भाई. कि भाई there are people even around here. See, the competition doesn't end at the part you give UC. Even when you come here, there are now you're competing against the best 37, right? So there are people who are by softwares बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों को. There are people who are like crazy good at Procreate, illustrations and stuff. So like I think I can speak for you too at this part कि भाई हम दोनों जैसे बंदे who have just done hard work कि भाई UCIT तो crack हो जाए यार. तो वो पार्ट पे हम लैक करते हैं at this point. तो हमें वो पार्ट पे तो वर्क करना है. Like अभी कॉलेज में आने के बाद it's like the only thing common between you and the all is you just cracked an exam. हाँ. बाकी it's like the skills that they all have, like कि सब पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का स्किल है, सब पे अभी some internship, कोई इनका YouTube चैनल्स बहुत सारे बड़े से हैं, कोई ब्रांड्स बना रहे हैं ऑलरेडी, एंड इट्स लाइक कि हमने तो सिर्फ एक पेपर ही तो क्रैक किया. एंड गेस व्हाट, पेपर और किसने क्रैक किया है? एवरीवन, लिटरली एवरीवन. एंड व्हेन यू आर लाइक, एंड ये तो फिर तुम्हारा आईडीसी वाला है, इट्स IIT बॉम्बे वाला. सो व्हेन यू every for the world you are IITians, but among the IITians you just know like just someone else. someone else, yeah. Every second person you talk to, हाँ स्टेट टॉपर है, हाँ CBSE टॉप करा था हमने तो, ओ हाँ मतलब ये तो हो जाता है, हाँ इंटरनेशनल ये वाला ओलंपियाड जीता था. भाई मेरा रूममेट उस दिन मेरे को कैजुअली बॉम्ब ड्रॉप करता है. ये लाइक मेरे को 10th में 99% आए थे. मैंने बोला व्हाट 99.6 समथिंग. यू आर लाइक हाँ आई लॉस्ट लाइक 2 or 3 मार्क्स. मैंने बोला भाई तू देवता है क्या यार, व्हाट आर यू डूइंग? एंड यू आर लाइक हाँ. मैंने बोला बोर्ड कौन सा था? यू लाइक भाई ICSE बोर्ड. मैंने बोला न्यूज़ में आया है तुम्हें? हाँ. ही वाज लाइक ऑल इंडिया रैंक 15 or 16.
बोला भाई 10th में भी उखाड़ लिया इन लोग ने तो. So it is really competitive. So don't take it casually, I'll say. And at this point, you'll take this as a demotivation. I'll say if you're looking at it कि भैया क्या demotivate कर रहा है, but demotivation को motivation के तरह लेना is the key, I'll say. मेरा तो ऐसा ही है भाई, मैं ईगो पे ले लेता हूँ. मैं बच्चों को भी बताता हूँ टेक इट ऑन योर ईगो. कि someone is saying कि भाई तू कर नहीं सकता, मैं बोलूँगा यार मैं कैसे नहीं कर सकता. किसने रोका है मेरे को? मेरे पापा नहीं बोले हैं मेरे को आज तक तू कुछ नहीं कर सकता करके. तू कौन से खेत की भूली है भाई? तो आई जस्ट टेक इट ऑन माई ईगो एंड आई एम लाइक भाई मैं तो करके दिखाऊंगा. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. लाइक प्रिपरेशन का स्टार्ट भी लाइक 6 month का ब्रेकिंग पॉइंट भी वही था कि पीपल वर लाइक यू वोंट बी एबल टू डू इट एंड आई वाज लाइक haha, you're doubting the wrong guy, dude. And like I'm here now. So, and apart from that, it's a fun process. See, I'll say अभी भी like we are demotivated on the part कि भाई हमें softwares नहीं आते, but we are determined to catch up on it, right? हम like Ankit has bought a laptop, he's learning softwares. मेरे को तो थोड़ा बहुत आता है, like I'm warrior mentality. हाँ, I have Photoshop वगैरह के skills, Photoshop Illustrator and Figma के skills थोड़े बहुत. Like I did over the span जो 6 महीने का USET का रिजल्ट होता है पर IIT आने के बीच में. तो वो एक डिफरेंट पार्ट है कि what after getting into IIT you have to do. You have to do a lot actually. That 6 months, please don't waste it. Abhi we'll have this conversation outside about your last month preparation, your USET के अंदर कैसे क्या करना चाहिए and how can we help these students through this video. Cool, let's dive into the food and let's connect later. Welcome guys, we're back again shooting the videos. So yeah, let's start with, because I am getting late for my train, it's around 4 PM and अभी 2:10 already हो चुके हैं, so I'll have to leave really quick. So we'll be shooting this podcast in a walking mode. तो ज़्यादा ही chill conversation हो गई है आजकल. So But yeah, I think it is needed at the moment because why you are stressed. You don't need to be. makes sense. Other than that, let's ask them कि last month बचा है preparation, even 20 days I would say. तो in last 20 days या 15 days में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. First, for those जो almost 3 to 4 months या 6 months से prepare कर रहे हैं, and then we'll talk about जिन्होंने zero preparation है या फिर 10-15 है but under confident है, जो 1 या 2 महीनों से prepare कर रहे हैं. Okay, I'll start. हाँ. I'd say for the people who are preparing for a longer time, let's say 4 months, more than 4 months, I'll say, they should at this point just focus on the topics, their strong topics, जो भी है उनके, the topics they think they're really good in, and they should at this point, they should be like कि अपने strong points को stronger बनाओ. एंड एग्ज़ाम में ये प्लीज़ ट्राई कर रहा कि आपके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वही आप एग्जामिनर को दिखाओ. राइट, आई थिंक यू विल एग्री टू दिस बिकॉज भाई एग्जामिनर तुम्हारी गलतियाँ ढूंढने का ट्राई करेगा. इफ यू आर नॉट शोइंग योर वीक पॉइंट्स, जैसे मेरा वीक पॉइंट वाज लाइक 5 point पर्सपेक्टिव मेरे को नहीं आता था. ऑल्दो मेरे NID के इसमें 5 point पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन आया था, बट आई सॉल्व्ड इट इन 3 point पर्सपेक्टिव. उसमें भी मैं थोड़ा सा डैंगली सा था, बट आई वाज श्योर कि मैं एग्जाम में करके आ सकता हूँ बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट फॉर लाइक 3 to 4 months. तो वो एक कॉन्फिडेंस ये था. तो आई से डोंट स्टार्ट विद न्यू थिंग्स. जैसे बहुत से लोग को मैथ से डर लगता है यूसेट के, बट जो जैसे टॉपिक्स, जैसे बहुत मैथमेटिकल टॉपिक्स जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस जिनका वेटेज ज़्यादा नहीं है यूसेट में, आई से डोंट स्टडी इट राइट नाउ, डोंट स्टार्ट विद इट बिकॉज भाई यू विल बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट अननेसेसरीली. वो टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ भी नहीं रहा है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक लाइक मेंसुरेशन जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मेरा कहना होगा मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट. बट स्पीड टाइम डिस्टेंस जैसे टॉपिक, प्रोबेबिलिटी समटाइम्स बहुत रेयरली आता है, PNC बहुत रेयरली आता है. तो ऐसे टॉपिक साल से अवॉइड स्टडिंग एट दिस पॉइंट. मेक योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्ट्रॉन्गर. विजुअल रीजनिंग वगैरह आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आई से कि भाई विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, बुक्स सॉल्व करते रहो. टू टॉक अबाउट द रिसोर्सेज पार्ट वाला ऑफ द क्वेश्चन, मेरा सजेशन ऐसा रहेगा, देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड इंटरनेट आर्काइव. इंटरनेट आर्काइव पे आई से गो टू इंटरनेट आर्काइव, सर्च फॉर विजुअल रीजनिंग बुक्स, ठीक है.
you'll not find appropriate books at the first try. You'll have to look for them. I've told this to everyone. But see, what differentiates a topper from a average student would be भाई कि तुम efforts डाल रहे हो वो book ढूंढने में, because you know. See, I'm telling you because I know that will make a difference in your part A. I still know many students who I teach कि जो ये चीज़ नहीं करे है, जबकि मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ, है ना. There are people who do that, but the toppers of the class, I'll say, the people who I know कि भाई पढ़ रहे हैं, they have done this for sure, and these guys are your competition. तो Yes, I think most of covered, Vyang has covered. For everyone almost, I'll say for the last week, ऐसा मत करो कि ओ बस थोड़ा सा और कर लेता हूँ, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, द लास्ट पुश करके, बिकॉज इट विल नॉट गो गुड. एंड तुम्हें पता है कि इफ़ यू हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर सम टाइम, तुम्हें पता है कि तुम अगर 2 हफ्ते 2-3 हफ्ते लगातार बहुत ऐसे करते हो तो यू द बर्नआउट वाली सिचुएशन हैपन्स, एंड वी डू नॉट वांट दैट in the exam, right? So last few days, keep them as light as possible, and like don't do anything. Honestly, I'll recommend कि people do whatever it's fun to you. But then there are some oversmarted people कि वो मिले तो बस पार्टी क्वेश्चन करना बहुत फन है, पार्टी में ड्राइंग करते बहुत मजा आता. See, if that is, you wouldn't even need to be asking these questions and like worrying about it. But we know. So watch a movie, go out with friends, take rest. Be as well rested as you possibly can. Try to fix your health in the last 1 week, I'll say. And sleep schedule. And apart from that part, I'll say don't just watch a movie. I'll say जो तुम्हारा daily practice है of like 4 questions daily, which I recommend people, वो continue करते रहो. Don't stop doing that completely, right? Yes. This is the canteen. This is the OG canteen. जहाँ बहुत सस्ता खाना मिलता है, इसलिए हम इसको बहुत अब्यूज़ करते हैं. बहुत ज़्यादा. ये I'm pretty sure this canteen is also abusing us from inside. But 4 साल में उसका रिजल्ट आ जाएगा. So I think अपन इस पॉइंट पे इम्यून बन चुके हैं सब गंदगी से. Even social anxiety just is scared of us, I guess. Oh, definitely. 100%. भूल के social anxiety होती है. There are people from random colleges here for Moodai and we are just vlogging like कुछ नहीं हो रहा है भाई, हमारे लिए तो नॉर्मल है. ये डॉगेश्वर. Cool, continue with your prep. Yes. So people who are not preparing उतना ज़्यादा टाइम से, so last वाले part में would just be कि you know कि जब तुम्हें रिव्यू मिल रहा है and you know कि हाँ तुम्हारे प्रपोर्शंस खराब, अगर पार्ट बी से टॉक अबाउट स्पेसिफिकली कि तुम्हारे प्रपोर्शंस खराब हैं या फिर तुम्हारे कॉम्पोजिशन में 2 इक्का दुक्का चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे, सो जस्ट ट्राई टू फिक्स दैट. हम ओवरऑल पूरा चेंज नहीं कर सकते कि वॉट एवर अभी हम कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट नॉट इनफ टाइम, बट दैट्स ओके. योर गोल राइट नाउ शुड बी कि तुम दोनों क्वेश्चंस इन पार्ट बी यू आर एबल टू अटेम्प्ट देम, बिकॉज यू विल बी ग्रेडेड आउट ऑफ 100 नॉट 50. तुम सोच लो कि ओ नहीं बस एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो रादर देन अटेम्प्टिंग बोथ ऑफ द क्वेश्चंस एवरेजली, आई से कि डू बोथ ऑफ देम एवरेजली, सो यू collectively you will get more marks, I promise you. And that's the case I've seen. Like I have experienced this. I have experienced. No, This is second wing. this is third. Sorry, second. How the sound? I've experienced this thing actually in real life. There was this like friend of mine in my class जिसकी drawing मेरे से भी अच्छी थी. But what used to happen to her was she wasn't able to complete her paper in time. भाई वो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होगी ना, आई एम प्रिटी श्योर भाई उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे जितने भी उसने सॉल्व किए होंगे उसमें. बट व्हाट हैपेंड इज कि वो पेपर ही पूरा नहीं कर पाई. बट मैं पेपर पूरा करके आया था भाई. मेरा ऐसा था कि मेरा पेपर पूरा कंप्लीट था, तो दैट एडेड एज अ बोनस टू मी आई फील, क्योंकि योर मिड आंसर्स पे तुम पूरा पेपर दे रहे हो तो तुम्हें कुछ मार्क्स दोस्त कंपाउंड. We are at hostel 2. हमारे रूम जा रहे हैं हम. क्योंकि ये बहुत पुराने हॉस्टल्स हैं. बहुत पुराने hostels हैं. These are about to break down. Oh, like me, let's go. Me if I was a हाँ hostel. जी. About to break down. About to break down. Maybe the next thing we want to know about is कि अभी जैसे एंजाइटी वगैरह तो है, यू टोल्ड अस अबाउट की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए, बट यूसीड के दिन क्या करना है, व्हाट एडवाइसेस डू यू हैव. यार यूसीड वाले दिन मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है. व्हाट आर द डूज
What are the don'ts? UC वाले दिन would nothing be ऐसे कि ओ पेपर में ऐसे करके आना करेगा. Morally just एक दिन पहले पहुंचने का ट्राई करना द सिटी ऑफ ए सेंटर, और सेंटर पे जितना जल्दी हो सके पहुंचने का ट्राई करना कि तुम वहाँ पे खाए तो खाना लेके जाओ, और खाना पेपर खाना खा के देना नहीं कि भूख नहीं लगेगी, बिकॉज भूख नहीं लगेगी, भूख 100% नहीं लगेगी, बट यू हैव टू ईट, क्योंकि पेपर एग्जॉस्टिंग रहता है. फिर तुम्हें पता है वेरी मच अग्रीड. हाँ, पेपर मॉक्स देने के बाद भी तुम्हें ऐसे पसीना शुरू हो जाता है, लेकिन अरे ये क्या मजदूरी कर ली मैंने. बट सो 100% एक दिन पहले पहुंचने का ट्राई करना, जाने से पहले सूसू पॉटी करके जाना, और अच्छे से खाना खा के जाना. वेयर वे गोइंग ट्राई, मोस्ट ऑफ ठंडी जगह रहेगी तो ट्राई कि तुम स्वेटर्स नहीं पहन रहे हो, तो जैकेट्स लेके जा रहे हो, क्योंकि अगर मे बी तुम्हें एग्जाम सेंटर के टाइम तुम्हें अगर गर्मी लगना शुरू होगी तुम उनको हटा सको. ठीक है. ऑल्सो कैरी अ हैंकरचिफ, पानी की बॉटल लेके जाना साथ में, एंड आई थिंक मोरली उतना ही रहेगा ऑन द एग्जाम डे इटसेल्फ. हो सके तो एग्जाम का पेपर चेक मत करना, कुछ रोने तो आएंगे, और उसके बाद कुछ कर सकते हो नहीं, बिकॉज आई थिंक आई हैव क्राइड, यू हैव क्राइड, एवरीवन हैज क्राइड आफ्टर द एग्जाम. सो have you cried, Gautam, after the exam? Gautam is already बीमार अभी. Have you cried after the exam? Yeah. I think everyone here has, it's a religious routine everyone here follows. या तो प्लीज एग्जाम बस मत ही चेक करना. बट कौन सा मेरी सुनने वाले हो तुम? No. एनीथिंग यू हैव टू से कि लास्ट डे क्या करना है? हाँ, last day I don't know if the senior I'm referring to will see this video, but भाई बहुत inspirational था यार वो senior. मतलब his attitude actually, he got into IIT Bombay मेरे क्लास पे का, तो मेरे को पता चला कि IIT Bombay was a चीज़. तो उसके बाद मैं IIT Bombay के लिए वगैरह प्रिपेयर करना चालू किया. अपार्ट फ्रॉम दैट वो बंदा ऐसा था कि भाई वो कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, वो भाई ऐसा चिल सा हंसते हुए दिखता था यार वो बंदा, एंड उसका IIT Bombay पास हो गया था. आई थिंक दैट्स द आइडियलिस्टिक एटीट्यूड. You should be not stressed. You should be in the present. Overconfident is a very different thing. You should be in the present कि भाई now I have to face the exam. You should not think about the result while you are giving the exam, I think. Right? एक chill रहो, relaxed रहो. See, even if paper में I saw कि भाई सामने वाले बंदी, मेरे सामने जो बंदी बैठी थी ना, उसका थोड़ा मिसआप हो गया कंप्यूटर में वगैरह. But see, the people out there are there to cater you. ठीक है? वो तुम्हारा कुछ मतलब टाइम इंडर नहीं होने देंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं जाने देंगे. दे ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम, और अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है तो देयर इज ऑलवेज IIT बॉम्बे का कोऑर्डिनेटर एट द सेंटर इटसेल्फ. तो दैट गाय विल हेल्प यू आउट कि भाई क्या इस पे ये है. तो वहाँ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होता है. आई से जस्ट बी चिल, एज अंकित सेड, खाना पीना वगैरह उतना ही ये है, और स्ट्रेस मत लो, इज ऑल आई से. Okay, last we'll have a rapid fire round now. Okay, let's get started. Just a second. First question for you guys is, I'm not technical. Is IIT designed for me? Like BTech वगैरह से related courses होंगे, चीज़ें होंगी, right? No, IIT Bombay is completely designed. IIT Guwahati has an engineering थोड़ा सा background, but IIT Bombay is not about. ठीक है. How did you dealt with your mental health while preparation? I did not. I'm not the good person to answer this. I kind of did. I was like, mental health तो लगेगी यार, anxiety आएगी, stress आएगा. But what I'll say is, don't run after the results. Try thinking about the process rather than the results. Okay. इस टाइम पे डाउनफॉल होना isn't that problematic, right? Like स्ट्रेस की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, so हम says that. डाउनफॉल लगेगा तुम्हें, तुम्हारा अगर मेंटेन भी हो रहा है ना तो यू विल फील ये डाउनफॉल, बिकॉज तुम्हें जो ग्रोथ की आदत है वो भी होगी नहीं, बिकॉज एट सम पॉइंट इट विल स्टैग्नेट. सो कीप दैट, टेक दैट एज अ विन. सो Yeah, and by don't overthink, please. हाउ टू बी इन द एग्जाम, लाइक एग्जाम से एक बार पहले वी गो इनटू सेंटर, उसके बाद वहाँ माइंडसेट कैसा होता है? दोस्तों के साथ मज़े करो एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सेंटर पे रहनी चाहिए, और दोस्तों के साथ मज़े करते हुए रहने चाहिए. वो लाइन रहती है लंबी, उसमें आई थिंक मज़े ही करते हैं सब, कि एवरीवन इज़ लाइक भाई क्या चालू है, तेरी बंदी कैसी है एंड स्टफ. लाइक आई वाज लाइक दैट. मैंने बोला आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द एग्जाम बिफोर आई एम गोइंग टू द एग्जाम. ठीक है. Yes, Ankit. while reaching the center, I was listening to calming. मेरे फ्रेंड्स ऐसे सच नहीं थे मेरे साथ वहाँ पे सेंटर्स पे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में. सो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद आई वाज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ लाइन प्रैक्टिस, बिकॉज आई फील कि थोड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जैसे गेटिंग द हैबिट. एंड वहाँ पे सेंटर बैठने के बाद रैंडम, बट लाइक आई वाज बिकॉज दिल्ली बहुत ठंडा था उस टाइम पे, एंड जनवरी में बहुत ठंडा रहता है, तो सिट ऑन योर हैंड्स ताकि फिर तुम एग्जाम स्टार्ट करो तो तुम्हारे हाथ में आई डोंट नो.
Yeah, he was warming up his hands, but I'll agree to the point. जहाँ उसने line practice, Yeah. like I did line practice सुबह और थोड़े से human sketches. That's it I feel. क्योंकि एक रात पहले तो नींद आती नहीं है यार. Yeah. We're continuing the round just a second. Okay, I hope you will drop it ASAP, at least in the upcoming week. I don't know what that is for. Oh, the podcast. Okay. That's on editor Vya, so. अच्छा जी ऐसा है क्या What did they prepare in last month? What did you do? A lot. मैंने 3 month का प्रेपरेशन था तो I can't afford कि oh no, अब 1 महीना बाकी जस्ट रेस्ट करते हैं. No, मैं थोड़ा लास्ट के मंथ लाइक लास्ट के 2-3 वीक्स वो हसल लास्ट का वीक वाज थोड़ा सा काम. मैंने तो लास्ट मैंने मेरे हिसाब से यूसड का ब्रोशर ज़्यादा रटा है सिलेबस से ज़्यादा क्योंकि स्ट्रेस ही उतना था. बट अपार्ट फ्रॉम द जोक्स लास्ट मंथ आई ट्राई टू परफेक्ट व्हाट आई वाज गुड एट. जैसे कि मेरे ह्यूमन फिगर्स वर थोड़े से टिप्सी तो आई लाइक नहीं आई कैन मेक देम बेटर. In the last month, I think it's a good stretch to make your humans better, right? तो वो एक I remember distinctively I did. Apart from that, मैं रोज तो एक बुक सॉल्व ही करता था इंटरनेट आर्काइव पे से. वो तो रेगुलरली चलता था. एंड वही जो 4 क्वेश्चन का मेरा रूटीन था कि डेली 4 क्वेश्चन, 2 पर्सपेक्टिव एंड 2 प्रोडक्ट, तो उतना हो जाता था. आई फील आई स्टक टू माई फिक्स रूटीन बिकॉज मेरा थोड़ा प्रिपरेशन पीरियड लॉन्गर था. How are classes taken in IDC? Nice question, है ना? So depends on the professor and the module. यहाँ पे जैसे कि राजा वाला मॉड्यूल was कि हमें काफ़ी बाहर जाने को मिला था. Like we had a पूरा ऐसे museums and all that too. Yeah. So that was fun. Photography में we were like we told कि okay these are the digital वाला stuff that you are supposed to do, learn and करके and then छोड़ देते खुला हमें. I think essentially it's like हर मॉड्यूल का it's like पहला क्लास आके बैठ जाओ भाई, हमारे को चेहरा दिखा दो और उसके बाद असाइनमेंट शीट दे देंगे, तुम करते बैठो जो करना है. Yeah, obviously professor helpful, not कि तुम्हें काम अकेला छोड़ देंगे. You can always refer to them for guidance and all, but and this is I think the best way to teach. Biggest change maker in the prep? There's just so many. I think we have made quite a few videos on that too. हाँ. But the would be कि attempt both part A and part B, सारे questions करो. And it's to realize that to be average at everything is better than being good at really good at just one thing. Yeah, it's like it's better to be jack of all trades than master of one. Yeah. मेरे लिए like I'm stressing on this point again and again, but मेरे लिए वो hard part था कि parties वगैरह छोड़ो, तो वो भाई मेरा change maker था definitely. Like I stopped being around like with friends and stuff. तो yeah. How excited they are to have us as their juniors. Really excited. आ जाओ. Bro, तुम आओ तो सही. Diet Coke, Monster, सबका सब Vyang पिलाएगा. Vyang chill है. Vyang I think most of the time मैं बोल देता हूँ कि यार ले लो यार, क्या ही करोगे. Definitely. Party हमारी तरफ से Party, हाँ. If you reach here, definitely we're gonna show you around the campus. भाई पूरा campus घुमाएंगे. भाई क्योंकि हमारे लिए भी एक होगा कि भाई हमने पढ़ाए हुए बच्चे आ रहे हैं यार. बहुत ये यार 4 जा रहा है. Next question. Next question is, I'm not technical. Is IT design for me? Yes, it is for you. but- Humanities soon. Yeah, it is. Don't It worry. is for There are a you. lot of people from humanities, commerce, and all the other fields too. So it's fine. There was a question on specific things to prepare in part A and part B, but I think we have a video on that Coming up, soon. yeah. So refer to that. Is it possible to crack UCID in 1 month with self-preparation and online resources with coaching? I'll say self-preparation nahi. You need guidance. See, streamline guidance, not because completely off the marketing. I have always said in class कि भाई मैं divergent का mentor नहीं हूँ. I'm first your भैया, second your friend, and not just a friend till now कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ. I've always told people कि if you are connecting to me, I won't remember your names first of all, but second of all, if you remind me कि भाई भैया आपने मेरे को पढ़ाया तो भाई we are friends for life. That thing, and उसके बाद भाई possible है just guidance ले लो. I'll say that's really mandatory for at least me. Yeah, and also like the part where say कि last month है ये coaching नहीं ले सकते and online करना है सिर्फ self prep and all. See, possible, anything is possible, I'd say that, but every filter that you put on it कि ये नहीं है करके, it will be difficult. So that is the only thing there is. Possible है 100%, but then all the filters you keep putting on it, जितना तुम late अगर prep start कर रहे हो या फिर only preparing for part A और only preparing for part B, तो it will be as just और difficult होता रहेगा. और एक लाइक हिंदी में मुहावरा है, अब पछता के क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुप गई खेत. तो नाउ इट्स लाइक 1 मंथ में तुम प्रिपेयर करना है,
अब उसके बारे में रो के मतलब नहीं है. एटलीस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग आई से, है ना? Yeah. फोकस मोर ऑन द प्रेप पार्ट रादर देन द 1 month पार्ट. Yeah. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑलवेज देयर यार. हम तो भाई वी ऑलवेज कीप टेक्सटिंग स्टूडेंट्स की भाई मोटिवेट हो जाओ यार. तो खाने में क्या खाते हो? खाने में हम मेस का खाना छोड़ के सब खाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे बहुत है. ओनली डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट अपने आप स्किप हो जाते हैं. हाँ भाई, लाइक ब्रेकफास्ट तो भाई IIT बॉम्बे आने के बाद आई थिंक 6 से 7 बार ही किया है भाई. मतलब उसका मेस भरा भी क्यों है हमने पता नहीं. द ओनली टाइम्स आई हैड ब्रेकफास्ट इज कि जब मैं डिनर के बाद सोया ही नहीं. हाँ, लाइक ऑल नाइटर्स पुल करने के बाद अब बोलते हैं कि यार ब्रेकफास्ट लग ही जाएगा. या भूख लगी ही है तो खा सनसेट के देख के सनराइज देख के 1 घंटा जाग के ब्रेकफास्ट करके ही सो जाते हैं. एंड द RBTIC का सनराइज डूड. 100%. अभी गेट कीप करेंगे थोड़ा सा तुम्हारे लिए. Yeah, like when you come here, bhai, you'll be. Or what did they focus on in the last month? Like right now, I'm in complete block about what to do. See, being in complete block is valid because I feel this is the ये क्या कहते हैं? This is the indicator that is showing कि भाई तुम सब at least पढ़ चुके हो. You are not just unaware about anything. You are like कि if you are at the stage कि भाई तुम्हारा भाई नए टॉपिक्स आ रहे हैं तुमको कि भाई ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, then you are a bit under prepared or at least you have started late I'll say. But if you are at the block वाला stage, I'll recommend कि हर टॉपिक का थोड़ा daily like wake up and be like आज मैं इतने टॉपिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँगा या कर लूँगी, and I'll say कि उतना ही is necessary. Anything? No, that's all I'd say. I hope you drop it ASAP. Yes bro, आ जाएगा. 1 month में कैसे लेस स्ट्रेस रखे और पार्ट बी में कितने मार्क्स कॉम्पोजिशन प्रोडक्ट करने चाहिए डेली? कितने करके? I think party में if you are able to, so my strategy is कि एक on composition, एक on product design and एक questions particularly related to NID वाला design aptitude. That is what I stick to throughout and that sort of helped me. So yeah. How to score 110 plus in party and improve it? Just like topics तुम्हें topics करने पड़ेंगे and see 110 is more or less कि तुम depending on the difficulty of mock it will be because if it's a really hard mock 110 उसमें अगर you're scoring बहुत अच्छी बात है but easy वाले mock में 110 so difficulty वाला part is there and how to do it just कि there are multiple topics you have to complete all of them and अगर तुम्हारे this just कि if you are not तुम्हारे एक type of questions नहीं हो रहे हैं just take it up complete the topic and then see कि उसके कितने deep question आ सकते हैं कितना तुम्हें deep करना है so I'd add up to this by saying कि भाई as we always say कि भाई UCID and CEED के PYQs are the holy grail, right? तो अगर तुम UCID और CEED के PYQs solve कर चुके हो 2-3 बार, you are familiar with it, and उसके बाद if you are analyzing your mocks daily, तो 110 तो is like easy I feel. 110 is achievable बहुत ज़्यादा. again depending on the difficulty of the mock itself but yeah. Like at least 20-25 के पेपर में अगर अपन कहे तो इतना करने के बाद तो 110 is definitely achievable. What to do in last 1 month to improve part B except line practice? I think we've discussed this. भाई आप लोग सोते हो? मैं रात भर सोया नहीं हूँ आज. मैं नींद पकड़ूं मैं सो जाता हूँ मैं नहीं सोया यार. I don't know. but see नींद here is it's weird you can't be sleeping रात को see cause तो तुम्हें you have to find time तुम्हें फिर तुम लंच पे सो सकते हो तुम ब्रेकफास्ट पे सो सकते हो तुम डिनर पे सो सकते हो तुम स्नैक पे सो सकते हो पर फिर अब तुम्हें खाने का देखना पड़ेगा कि तुम कब खाओगे सो लाइक यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं फिर खाना तो यार कैंटीन है खा लेंगे तो वो आई थिंक इज ये पार्ट ऑफ आर दर्द स्टोरी बट ऐसा मतलब 8 घंटे की नींद तो तुम्हें कंटिन्यूसली तो नहीं मिल रही है सेमेस्टर भर दैट्स फॉर श्योर तुम्हें ब्रेक में दिन की कंप्लीट करनी पड़ेगी सो जाओ एग्जाम के बाद सो जाओ बहुत बाद में बहुत याद आएगी हाँ वो 6 महीने यूसेड के रिजल्ट और ज्वाइन करने के पहले आई फील नींद ले लेनी चाहिए one thing you would and one thing you wouldn't recommend doing in a few weeks before UCID. Starting new stuff. Yeah, I think we've discussed this, है ना? What was your prep strategy last 15 days by resources and books for UCID? थोड़ा लेट नहीं हो गया इस क्वेश्चन के लिए? हाँ, honestly it's too late for this question. But as I mentioned earlier also कि Internet Archive उस पे visual reasoning के books ढूंढो, that's a really nice ये. And उसके बाद there's Big Book of Brain Games, there's
IQ testing books, I'll say. There's also, if you want author wala books, then there's Ivan Maskovich ka book, then there's Martin Gardner, and then there's one puzzle wala book from Shakuntala Devi too. So if you want, you can check those out too. I think Shakuntala Devi is quite hard, but if you're able to I solve mean- Shakuntala Devi, then you said ho jayega. yeah, yaar. Martin Gardner is also really like these questions are I don't want to get demotivated. These are really, really difficult questions. So it's just like to get your brains moving and just like for stimulation. That's all. And I'll say कि अगर तुम्हें hard question solve करने की practice है तो then USET का paper becomes हलवा. Yeah. Honestly, yes. And अगर भाई वो paper हलवा बन गया तो भाई तुम्हारे लिए तो भाई rank आनी है फिर definitely no one is stopping you. How to improve our range of marks? जैसे सी अगर पार्ट में फिर पार्ट बी में आई से कि जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन दोनों अच्छे टाइम पे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो. पार्ट ए में इट वुड बी कि तुम मोस्ट ऑफ टाइम यू विल बी डूइंग सिली मिस्टेक्स. तुम्हें क्वेश्चन आता है, तुमने या तो क्वेश्चन गलत टिक कर दिया, गलत पढ़ लिया, एंड लाइक इधर तुमने स्किप हो गया. सो जस्ट मेक श्योर कि तुम ये सिली मिस्टेक्स समहाउ यू आर एबल टू सी कि तुम उनको कैसे इंप्रूव कर रहे हो. एंड उससे ही 15-10 मार्क्स में बहुत एंड आई एम टेकिंग कंजर्वेटिव मेजर हियर, इंप्रूवमेंट आ जाएगा. I think that's it from our end. There's no Yeah, more bye. questions. Generally, drop any questions you have either in our comments, Diversion Classes के Instagram पे, हमारे Instagram पे. I think the video editor or uploader will tag us and let us know, help out, join Diversion Classes. We have a 30-day का crash course because we know 30 days में possible है. भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है लाइक राइट टाइम पे राइट चीज़ें होती है. लास्ट नाइट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ आवर सीनियर्स. ही वाज लाइक भाई मैं साल भर नाटा के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है, एंड लाइक लास्ट 30 डेज में ही वाज वेंट टू सम कोचिंग एंड द मेंटर देयर वाज लाइक कि भाई तू कर ले यार, यूसिड भी दे दे. तो लास्ट 30 डेज में ही जॉइंड यूसिड का, ही प्रिपेयर्ड फॉर यूसिड विथ हिज फ्रेंड और समथिंग. उसने यूसिड क्रैक कर लिया, वो यहाँ पे है, बट उसका दोस्त MIT WPU में है. तो You never know क्या you never what know, exam yeah. might just have for you. That tells कि भाई hard work is very important, but along with hard work, I feel smart work also plays a role in it. And थोड़ा luck तो is there. So हाँ, I तो- think that would be it from us today. From us Oh, today. And all the best for the rest of the prep days you got. And hopefully we'll see you here in 6 months. At Diversion, let's go. And bye, excited to see you guys.